متابعي صفحة المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بمدينة تازة، وكذلك متابعي الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي لمسرح الطفل. مساء الخير ومرحبا بكم. ها أنا أرحب بكم مرة ثالثة، يعني أننا في اليوم الثالث لفعاليات هذا المهرجان الدولي الذي تحتضنه مدينة تازة. وضيف اليوم هو دولة الهند، ودولة الهند هي من الدول التي عرفت أقدم التعابير الفنية وخاصة في المجال المسرحي، وبالأخص المسرح الموجه للطفل. وكما تعلمون أن الهند تتوفر على مجموعة من اللغات، وتنحصر اللائحة الرسمية في 18 لغة، بالإضافة إلى مجموعة من الديانات ومجموعة من التعابير الاجتماعية إلى غير ذلك. ويعمل المسرحيون جاهدين في توحيد كل هذا الزخم في خطاب فني جمالي موحد ليكون هو الهوية للعمل الفني الهندي. وهذا المساء ستكون لنا فرصة لمشاهدة مثل هذه الأعمال، وهو العمل الذي سنقدمه لكم هذا المساء يحمل عنوان The Unclothed لوكالة لارجا برودكشن. فرجة ممتعة وإلى لقاء قريب. हाँ, एक मिनट। अरे एक मिनट। क्या हाल नंदू भाई? यार तुम्हें नहीं लगता कि ये लॉकडाउन कुछ जरूरत से ज्यादा खींच गया है? आई एम तो क्लाइंबिंग द वॉल्स विद ये सॉलिट्यूड ना सब ओवररेटेड है। क्या 300 स्क्वायर फुट का गोरेगांव का फ्लैट, इट्स लाइक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अरे तुम्हें हमारी तिमरजली कोठी देखनी चाहिए मेरठ में। उफ, डिड आई टेल यू दे सील्ड ऑफ माई फ्लोर? अरे वो बगल में है ना रॉकी बदमाश साला अपने पोकर गैंग के साथ ही वेंट टू लोनावला ऑन अ जॉय राइड, केम बैक, टेस्टेड पॉजिटिव एंड नाउ वी आर ऑल स्क्रूड। कैन यू इमेजिन सम पीपल एंड द सेल्फिशनेस? नाउ वी आर स्टक एट होम। I wish I had some actual work during this lockdown though. I mean, how many Insta videos can one make now of different yoga positions? I was supposed to be in Patal Lok yaar. Last minute उस final audition में पता नहीं क्या हो गया. And the same thing happened with Made in Heaven. There were so many female parts. They could have cast me for just one. They don't want to try fresh faces. I know. This camp attitude now, it's now starting to creep into OTT. यार मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? नहीं जाना है मेरठ यार। कैसे जाऊं? सारी ट्रेनें बंद है, पैदल चल के जाऊं क्या? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और लॉकडाउन अच्छा बहाना है, लड़का खोज के रखा है भदोही से। फादर है सम कारपेट बिजनेस, व्हाट डज शी वांट मी टू डू? बेर टू सन्स विद हिम? ना जी, नहीं बनना है भदोही की बहू रानी। और पापा 6 साल पहले गुस्से में घर छोड़ के निकल आई थी, ये कह के कि मैं खुद गर्ज हूं, अपने पैसे खुद कमाऊंगी। And I know you wanted me to be a teacher, Papa, but did you even once ask me what were my dreams, my aspirations? I wanted to come to Mumbai, become a star, see myself on the big screen. Friday releases, 100 crore clubs, item songs, कुछ भी चलता, web series भी चलती, but really, what do I have to show for the last 6 years? Sorry, Papa, मैं वापस नहीं आ सकती. The men in my life, Nandu, what do I tell? You remember Utpal? Yeah. Excuse me, my ex. Arey, I know you don't like him. Stop it, he's just loud, that's all, okay? Anyways, his startup company said Tata bye-bye to him last week. So I was like, chalo theek hai yaar, meri savings hai, I'll support him. We stopped Swiggy, we started cooking at home, we unsubscribed Netflix, we got Disney Hotstar. And then that Sala turns around and says Tata bye-bye to me.
किरण कन्हैया स्टोर है ना नीचे, अरे वो जनरल स्टोर नीचे किरण कन्हैया, उसके बिल के पीछे ये लिख के गया, ये देखो, बेब आई नीड टू गो एंड फाइंड माई सेल्फ विद 2 F's in myself. What an uneducated bastard. Like, I should be grateful now that he did not break up with me over WhatsApp. What an old-fashioned guy. Actually, in a way, it's good. This lockdown had locked his head down and he was taking all that shit out on me. नंदू, मैं ना यूपी से हूँ, बम्बई से नहीं हूँ. मेरे सारे मेंटर्स भी वहीं से हैं. नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन, सब. And being an out-of-town PG tenant, or what are they calling it? Migrant worker. It's very different from a born and brought up Bombaya. It's in times of crisis you realize that the city really isn't yours. आप यहाँ पर सिर्फ एक अजनबी हैं. I haven't met anybody in the last 3 months, yaar, except for you. And look, I know I have a lot to be grateful for. I don't have to walk back 2,000 miles to be home, but still. To tell you the truth, I'm really scared when this lockdown's over. I mean, I've been safe until now in this home. It's my comfort zone. I've been happy here. And I know I have to go home, but I can't. I know I have to go out and... What am I going to do tomorrow? What am I going to do tomorrow? Nandu? Nandu, मैं तुमसे बात... Hello, excuse me. यार, जब 6 बजे आके तुम यहाँ पर क्या शुरू कर देते हो तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे बात करी तो... Just go. You're just like the others. You are like the others. Just go. Go! Just go. Shoot! Shoot! I'm sorry. I'm really sorry. Look, I don't look at me like that. I said I'm sorry. Please, यार दिमाग खराब हुआ पड़ा है. सोशल मीडिया पे लोग भाषण दिए जा रहे हैं. मेंटल हेल्थ ये, मेंटल हेल्थ वो, डिप्रेशन ये वो वगैरह वगैरह. अरे यार, सडनली एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट. मैं डिप्रेस नहीं हूं. आई एम फाइन. And these are the same people, when you send them a WhatsApp message, now they'll check your message and not even respond. And you know that they've seen it because you can see those 2 blue ticks. And when they respond, they say shit like, relax babe, this too shall pass, or oh my god, you're so young to have these thoughts. One bitch on Instagram wrote, only the rich and famous can afford to be depressed. जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी कॉल करते हैं, जैसे रिंकू और प्रखर, कभी कभी सो स्टार यार कितनी वाहियात बातें करते हैं. यार तुम वरुण धवन के साथ अगली फिल्म कब कर रही हो, और ऋतिक रोशन से जरूर मिलाना हमको आज हम बॉम्बे आएंगे. I really can't discuss anything private with them. In Bollywood, you don't really have friends. You have to act tough as though you have a thick skin. नंदू, तुम कभी मेरठ जाओगे ना तो मम्मी पापा से ज़रूर मिलना, और अगर लगे तो मम्मी तुम्हें कटहल का पुलाव खिलाएंगी. पापा प्लीज सॉरी बोल देना. Tell them I was stuck. I couldn't go forward, back, or
I can't come home. Although this isn't home. Just tell them I love them, okay? क्या है सीरियस हो गए नंदू मियाँ? कल 6 बजे आ जाना, तुम्हारा जलपान यहीं पर रखा होगा। बाय नंदू भाई। नमस्कार, मी अनिल खोपे, कोरोना वॉरियर। कोरोना क्या चीज है ना साहब, इतना साल समाज कोशिश किया लेकिन कुछ नीच हटा नहीं पाया। एक माँ आदत चो चमकादड़ खाया चाइना में, सबको बुखार आया और दुनिया में आया इक्वालिटी। अमीर बर्तन धो रहे, गरीब डाइटिंग कर रहे मजबूरी से, और मिडिल क्लास मतलब मैं अनिल खोपे, हम लोग क्या कर रहे हैं बता। मैं अनिल खोपे, मैं कंपाउंडर है, दोस्त लोग मेरे को नर्स बोलते हैं, ऐसा जोक्स। अभी सब काम भी चला गया तो मैं कोरोना वॉरियर का काम ले लिया। क्या है, हम लोग मिडिल क्लास लोग का फैमिली थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो जिम्मेदारी के वजह से थोड़ा काम करना पड़ता है कभी भी। मैं कोरोना वॉरियर बना NSCI में, हाजिरी दरगाह के सामने फर्स्ट क्लास डोम में कोरोना वॉरियर। उधर पे मेरा दोस्त भर्ती हुआ इमरान ना मेडिकल चलाता है मजगांव में। वो क्या है ना, जब अमीर लोग ने दान दिया ना, वो इंटरनेट पे ट्रांसफर मारा तो गरीब तक पैसा पहुंचाने का था। अभी पहुंचाने जाएगा कौन, मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग। इमरान गया वो पैसा पहुंचाने को गरीब को, कोई तो भिखारी खासा रहेगा उसके मुंह पे। उसको हुआ कोरोना, उसको, उसका बीवी को, उसके 2 बच्चे को। इमरान को भर्ती किया। 4 लोग को भर्ती नहीं कर सकते, NSCI में एक का एक बेड मिला उसको, और प्राइवेट में 4 को भर्ती करते, उससे अच्छा मर जाने का, इतना महंगा। तो इमरान भर्ती हुआ NSCI में। हम लोग फर्स्ट क्लास दरिया देख के बोलते थे, क्या भगवान हमको चांस दिया इमरान को और मेरे को, सी फेसिंग रह रहे अपन। हम लोग साइड से निकलते थे और इमरान क्लासिक माइल्ड पीता था दरिया देख के। उसका कोरोना भी माइल्ड था, वो मेडिकल चलाता था ना, उसको ऑर्डर भी आता था, रफ ऑर्डर ले रहे वो लोग, एक के बदले में 4 पैकेट क्रोसिन खरीदते। उसको एक मैडम बहुत फोन करती है, नायरा मैडम को थोड़ा ब्रीथिंग इशू हो रहा था। मैं बोला कैसा ब्रीथिंग इशू, कोरोना है क्या? बोला नहीं रे, अमीरों का नया बीमारी आया है, एंग्जाइटी। अमीरों को होता है, बोले बंगला गाड़ी क्वारंटीन सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ चला नहीं जाओ इसका डर, एंग्जाइटी। उसका दवा भी हुआ मैडम का इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा, मैडम एक नंबर हीरोइन। मैडम छोटे छोटे कपड़े पहन के बर्तन धो रही, वीडियो में छोटे छोटे कपड़े पहन के झाड़ू लगा रही, गाने पे डांस कर रही। वैसे मेरी आई भी बर्तन धोती है, लेकिन मेरी आई क्या पूरे कपड़े पहनती ना, तो उसको क्या, उसको इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं लगा मेरी आई का। मैडम के तो 5-5 लाख फॉलोअर, एकदम हीरोइन की जैसा, अलग अलग कपड़े में फोटो डालती, बोले मेकअप बाय, हेयर बाय, ऐसा करके रोज नया फोटो डालती, और फोटो के नीचे वो ऐसा शायरी लिखती, एकदम 3rd क्लास शायरी, बकवास शायरी लिखती रोज। फाइंड योर सेल्फ, पॉजिटिविटी, ऐसा करती। वो शायरी का क्या है ना, ये शायरी संडास के जैसा, आवे तो कर लो, जबरदस्ती जोर लगा से ना साहेब हरनियों। वो मैडम को हम लोग देखते थे, वो मैडम एकदम हीरोइन की जैसी है, वो आधी हीरोइन, एकदम पर्सनैलिटी हीरोइन, लेकिन पिक्चर नहीं मिलता उसको ऐसा। एक रात को ना हम लोग ऐसे बैठे गप्पे मार रहे थे, 2-3 बजा था, और वो फोन आया फैसल को। मैडम फोन पे रो रही थी, नायरा मैडम बाजू में रहती थी, वो ऐसे इधर रहती थी, उसके घर से भी दरिया दिखता था। रो रही थी, बोली मेरे अंकल को कोरोना हुआ है, इसको फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में डाला है, तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए। अभी रेमडेसिविर का ना थोड़ा सा लोचा है, रेमडेसिविर ना गवर्नमेंट में ज्यादा इजीली मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में। इमरान शाना है, इमरान के पास कॉन्टेक्ट था, मिडलमैन करके सनी करके लड़का है, सनी को फोन लगाया। सनी बोला 12,000 का इंजेक्शन है, लेकिन अमीर लोग को हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में 40,000 में देते हैं इंजेक्शन, और मिनिमम 7 इंजेक्शन मांगता डॉक्टर। इमरान बोला भाई हम लोग को ये सब का खाचा नहीं मांगता है, तू डायरेक्ट मैडम से बात। वो मैडम से बात करके हो, उस रात को मेरे को हल्का खांसी हुआ था। 2 दिन बाद मेरा टेस्ट किया, पॉजिटिव निकला। लगेज मेरे को इमरान के बाजू में बिस्तर पे लेटा दिया। 2 दिन और निकले, मेरा ब्रीदिंग का इशू।
डॉक्टर आके मेरे को बोला तुमको भाई रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगेगा 7। मैं बोला 7, एक इंजेक्शन कितने का है? 12,000। 12,000। इमरान को देखा, बोला कैसा करने का? इमरान फोन लगाया सनी को, बोला भाई उधर दो करके। सनी बोला मैं क्या, मैं तो डीलर है। मैडम नायरा मैडम को फोन लगा, नायरा मैडम दोस्त है ना वो इमरान की। वो बोला मैडम फोन नहीं उठाया, मैडम कुछ तो बिजी थी, वो ऑनलाइन मोर्चा कर रही थी, वो माइग्रेंट लेबर वैसा बोल के, वो जो लोग काम करते ना तुम्हारे घर में उसको माइग्रेंट लेबर बोलते ना अमीर लोग, तो उसका मोर्चा कर रही थी, ऑनलाइन पे मोर्चा वो अमीर लोग करते ना, वो प्रोटेस्ट। फोन ही नहीं उठे 3 दिन 4 दिन। मेरा क्या सांस एकदम स्लो हो रहा था, ऑक्सीजन गिर रहा था। मेरे को इमरान हाथ पकड़ के बोला अनिल तू डर मत रे, तू जोर से सांस ले, जोर से सांस ले। लेकिन साला कोरोना में सांस ही तो नहीं आता है। ये बात को 3 हफ्ता हो, इमरान वापस अपनी दुकान पे लौट गया था, मेडिकल फर्स्ट क्लास चल रहा था। नायरा मैडम का फोन है, वो बोली अरे इमरान यू नो माय अंकल पास अवे, माय आंटी हैज कोरोना नाउ। इमरान का थोड़ा मूड ऑफ था। इमरान बोला मैं तुमको फोन किया, तुम उठाए नहीं, तो बोली सॉरी आई वाज बिजी। ये फिर वो पूछी अरे तुम काय को फोन किए थे 3 हफ्ते पहले? इमरान बोला मेरा दोस्त बीमार था, उसको इंजेक्शन लगता था, तुम फोन नहीं उठाई, तुम रिप्लाई नहीं की। तो बोली सॉरी हाउ इज योर फ्रेंड नाउ? फ्रेंड मतलब मैं कैसा हूँ? हाँ मैं बच गया। इमरान साला अपनी बीवी के गहने बेचा था ना उस रात के, 7 इंजेक्शन लाके दिया था मैं 3 इंजेक्शन में ठीक हो गया। हमारे सर पे पड़ गए थे 4 इंजेक्शन, 48,000 रुपीज के। अभी नायरा मैडम की आंटी को इंजेक्शन मांगते थे। इमरान मेरे को फोन लगाया, बोला सुन अनिल, मैडम ने अपनी मदद नहीं की थी, अपन मैडम की मदद करते हैं, उनको इंजेक्शन ला के देते, पहले तेरे 4 इंजेक्शन उनको देते 35-40 हजार रुपए में, 40,000 का एक इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन 1,60,000 रुपए के, और फिर बाकी का बाहर से करके दे देंगे 30-35-40 हजार में। नायरा मैडम की आंटी को बहुत इंजेक्शन लगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग बन गए मिडल मैन, लाइफ बन गया हम लोग। भगवान अल्लाह का शुक्र है, हम लोग सी फेसिंग में रह रहे थे, मतलब काम कर रहे थे, और रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच के बहुत पैसा कमा रहे थे। पैसे से कुछ किए नहीं हम लोग, राशन खिलाए सबको, राशन दिलाए, राशन खिलाए, पैसन वाले को राशन, फिर पैसन के पैसन वाले को राशन, फिर पैसन के पैसन वाले को राशन। क्या है ना, कोरोना प्रॉब्लम नहीं है सर, राशन का ही तो प्रॉब्लम। इमरान की वाइफ को थोड़ा गहना दिलाया है, मेरे आई को फ्रिज दिलाया है, अभी फ्रिज में रखने को खाना भी है। लाइफ बना दिया कोरोना हम लोग। वो क्या है ना कि अमीर लोग सब ट्विटर पे थे, गरीब लोग टिकटॉक पे थे, रंडा खा रहे थे, टिकटॉक बंद हो गया। मिडिल क्लास लोग नौकरी पे, नौकरी का मार। मेरा नाम है अनिल खोपे। तुमको कुछ भी कभी भी लगेगा ना, कंपाउंडर कुछ भी काम, कुछ भी, तो मेरे को बताने का, मेरा फैमिली थोड़ा बड़ा है, मैं कुछ भी काम करे। और रेमडेसिविर भी मांगता तो मेरे को बताओ, तुम्हारा औकात नहीं है तो तुमको 12,000 कट्टू कट देगा, और तुम्हारा औकात है तो तुम फर्स्ट क्लास है, मेरे को देख के लगेगा तुम्हारे पास पैसा है तो तुमसे मैं 25,000 रुपए लेगा इंजेक्शन। हाँ, मेरा नाम अनिल खोपे। तुम अपना ख्याल रखो, हाथ पीत धो, किसी को खाना पीना खिलाओ, तुमको जो करने का है कर, मुझे आता जरा काम है। कल रात साहब पीछे के दरवाजे से निकले, पिछली सीढ़ी से नीचे उतरे, मेरी खोली के सामने मुस्कुराते हुए, अपने पैजामे को फोल्ड करके, मोती के पेशाब से बचकर वो टूटे वाले काटन के बक्से पर बैठ गए।
मेरे नए जियो पे उन्होंने फोन किया था। हाँ, जियो जो उन्हीं ने दिलवाया है। हम दोनों के पास सब कुछ एक जैसा है। हाँ, घर, बीवी, बच्चा, कुत्ता, मोबाइल, शराब। हम दोनों ही शराबी हैं, दोनों दोनों पिए बिना सो नहीं पाते। वो चिंता से बचने के लिए पीते हैं, सुना है। मैं इसलिए पी लेता हूं कि कभी कभी मुझे लगता है मैं इस शहर में बस पीने आया हूं और ये शहर सिर्फ चखना है। उनके घर में जब वो पीते हैं तो धूप बाती सब बुझा कर पीते हैं। मेरे यहां तो मेरी बीवी पहले पीती है, फिर मुझे 4-5 घूंट देती है। हमारा बड़ा बेटा भी है, पी लेता है कभी कभी। और मोती मोती भी चाटते चाटते कुत्तों में शराबी ही कहलाता है। बोतलें बोतलें बहुत हैं हमारे घर में। रंगरसिया, अनारकली, अप्सरा, वो नारंगी गुलाब, नाइट गोल्ड जैसी उम्दा देसी शराब हर कोने में पड़ी है। शराबियों का घर है। हम बोतलों में पीते हैं, उनका गुलदस्ता नहीं बनाते। साहब की शराब खत्म हो गई, मेरे जियो पे टनाटन लगा दिया। साहब आ जाइए, घर में बहुत है, पर आप पी पाएंगे? भाई अब मजबूरी है, घर में बंधु जो मिले उसी से जीभ और दिमाग का रिश्ता बनाकर रखूंगा। वो आ गए, चुप कर। क्योंकि सोसाइटी में शराबी होना एक बात है और नीचे की झोपड़पट्टी में बैठकर पीना अलग। घर में बच्चे हैं, औरत हैं। कौन आदमी नीचे जाकर अपने पूरे खानदान की बनी बनाई मेहनत से बचाए हुए मध्यम वर्ग के ताजमहल को पेशाब और शराब के कीचड़ में डुबोएगा? तीसरे ही घूंट में साहब ने कहा, कैसा चल रहा है? मैंने पूछा, क्या? यही घर पर रहना। और कहाँ रहेंगे साहब? आप बताइए, आपका कैसा चल रहा है? बहुत अकेला पड़ गया हूं रे। अकेलापन खाए जा रहा है। अच्छा, 4 घूंट और लेकर उन्होंने चांद को देखा। वो केबल और बिजली के 26-37 तारों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी के हाथों के खुरदेपन को लोग मेहनत का नाम देते हैं, ये जानते हुए भी कि मेहनत वो होती है जो इंसान अपनी मर्जी से करता है, और मजबूरी वो जब चांद भी बिजली के तार के पीछे अपनी शर्मिंदगी ढकता है। तेरा अच्छा है रे, इतनी शराब रखता है। खाने का क्या कर रहा है? खा रहा हूं साहब, आज भरपेट खाया। सरकार की गाड़ी आई थी। और कल मुझसे ले लेना। मेरा ऊपर जाना मना है साहब, दिन में नीचे आप नहीं आ सकते। रात तक पी लूंगा, भूख कविता बन जाएगी।
एक समय मैं भी लिखता था। मैंने भी शराब में शायरी की है। आजकल बस डायरी भर में ही रह गई है बात। तुझे क्या लगता है, अब जब सब घरों में बंद हैं तो क्या लोग ज्यादा शायरी कर रहे होंगे? औरों का तो पता नहीं साहब, मेरी शायरी में तो इजाफा हुआ है। सुबह निकलता हूं खाने की तलाश में, सड़कों पे कोई नहीं होता। इतना सुकून, इतना सुकून, अल्लाह कसम आज तक महसूस नहीं किया। तू भूखा है तो मुझसे ले ले, मैं भी तो तुझसे लेने आया हूं। हाँ, डायरी मर्जी से लिखते हैं साहब, शायरी तलाश ही लिखवा लेती है। तू ताना मार रहा है, इतने में मोती आ गया, साहब को सूंघने लगा। वो डर के मारे वहीं जम गए। अंदर से बेगम निकली पल्लू ठीक करते हुए, आ जाओ, इंतजार हो रहा है, बच्चे सो गए हैं। मोती ने सांप को सूंघते हुए उनके जूतों के नीचे से कुछ सूंघना चाहा। सांप पीछे हो गए और एक जूते के नीचे से दूसरे जूते को घिसकर एक मरे हुए कबूतर की आंख निकाली। मोती ने सांप को घूरा, कबूतर की आंख ली, भाग गया। है सांप मोती ने बचा कर रखी थी। कुछ लेकर मत आइए बेशक, पर कुछ लेकर भी मत जाइए। जो खाना पीना है यहीं साथ में करिए। ये वक्त मुश्किल है साहब, वरना मोती भी आपको दे देता। चलता हूं, तुझे कुछ जरूरत हो तो बताना। 3 बोतल और है साहब, कल पिएंगे तो आ जाइएगा। एक शराबी ही दूसरे शराबी को समझ सकता है। आज डायरी में लिखूंगा ये सब। ओए, वो नशे में थे और नशे में सही पर बोल पड़े। तू कितना किस्मत वाला है रे, अब तू अपनी लुगाई के साथ जाके नशा उतारेगा। सांप मालिक सबको एक जैसा तो नहीं देता, औरों की अमीरी पर जलन नहीं करते। कल कुछ लिखेगा तो बताना। देखता हूं साहब, सरकार का राशन आया तो नहीं लिखूंगा, नहीं आया तो कल आपका नंबर मैं लगाता हूं। वो चले गए अपने अकेलेपन से लड़ने, और मैं अपनी लुगाई के साथ आखिरी 4 घूंट पसीना, और आज रात एक भरे पेट का मजा लेने। आपसे एक ही निवेदन है कि सरकार तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों और नियमों का पालन करें और अपने घर से बाहर ना निकलें।
इधर, अरे इधर, अरे कैमरा वाले भैया, अरे कैमरा कैमरा कैमरा, इधर 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 इधर। कहाँ से हो? हाँ, मीडिया से होगा? हाँ, कहाँ से? मुंबई चैनल से हो? तो हमारी फोटो भर मत खींचो भैया। हवलदार हवा सिंह की बात भी पहुंचाओ ऊपर से नीचे तक। हाँ, रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करिए, आप रिकॉर्ड करिए। हम सस्पेंड हो गए हैं। सस्पेंड ही समझते हैं आप? सस्पेंड हो गए हैं हम। इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा, हवा सिंह, कोरोना धड़धड़ा के फैल रहा है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। हमने कड़क सैल्यूट मारा। ओके सर। हम जान की बाजी लगा के ड्यूटी कर रहे थे भैया, जान की बाजी, कभी 12 घंटे तो कभी 24 घंटे, मगर हर आदमी हवा सिंह की हवा निकालने में लगा हुआ था। एक बुजुर्ग महाशय छड़ी घुमाते चले आ रहे थे। हमने पूछा, दद्दा जी कहाँ निकले हो? तो वो अपने पोपले मुंह से बोले, सन, धूप सेकने को निकले हैं बच्चा। 10 दिन से घर में सिटिंग हाथ पांव स्टिफ हो गया है। साइड से जाएगा, जीसस को हेलो बोलेगा, थोड़ा स्ट्रेंथ लेगा, लॉकडाउन का सन्नाटा देखेगा और वापस आ जाएगा। हम बोले, श्रीमान जी, मास्क नहीं लगाए हो, वायरस टोटा में जाके अटक गया ना, तो राम नाम सत्य के सिवा कोई चारा नहीं है। अरे आप तो जाओगे, साथ में 2-4 को और ले जाओगे। What do you mean? You mean कि हम डेड हो जाएगा? Shame on you. पुलिस है ना तुम? I'm a senior citizen. I'm 84 years old, retired professor from Atharv Research and Institute. You want? Then arrest me. Arrest me now. But remember, अगर टेंशन से रास्ते में हमारा हार्ट फेल हो गया, then you responsible. You understood? वो छाती में हाथ धर के गुस्सा से कपकपाने लगे। हमको लगा इनको यही कुछ हो गया तो हम फंसेंगे। जाओ दद्दा, आप यू गो, बट जल्दी वापस कम बैक करना। हाँ, कम बैक, ओके, सुन। हाँ, अब वो गए ही थे कि बुर्का पहने एक पर्दा नशी दिखाई दी। कहाँ जा रही हो खाला? शुगर की दवा लेने निकली हैं। डायबिटीज बढ़ा हुआ है, खानदानी रोग है बेटा, अब्बा को है, अम्मी को है, मुझको है, नन्ने को है, उसकी बीबी सुल्ताना को है। ग्लैकोमेट 500 का 1 हफ्ते में 4 पैकेट खप जाता है। ऊपर से अल्लाह की मार, 10 दिन से सब घर में बंद हैं और डॉक्टर साहब का सख्त ऑर्डर है कि 2 किलोमीटर रोज चलो। इसलिए 10 फुट के कमरा में ही सब लोग चक्कर मारते रहते हैं। बट दवा लेने तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, अब हम हाँ कहते कि ना, उससे पहले हाँ खाला दुआएं देती चली गई। अब चले गए, हम क्या करते? अब वो गई नहीं थी कि एक पति पत्नी स्कूटर पे बतियाते हुए चले आ रहे थे। हमने सीटी बजा के हाथ दिया, कहाँ जा रही है सवारी? तो औरत मुस्का के बोली, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है भाई साहब, हमारे दीदादी को तौत लगा है। क्या लगा है? तौत लगा, तौत। शौक लगा है? हाँ, काहे का शौक लगा है बहन जी? तो जवाब आदमी ने दिया, मेंटल शॉक। 40,000, 40,000 रुपए तनख्वाह थी। लॉकडाउन से 1 दिन पहले साड़ू भाई ने सनक में आके नौकरी छोड़ दी। बस 1 दिन और चले जाते तो लॉकडाउन की पूरी तनख्वाह मिल जाती। इसी दुख में इतना पगला गए हैं कि रात भर में आधी मच्छरदानी चबा लिए हैं। क्या मच्छरदानी चबा लिए हैं? औरत अपना मोबाइल दिखा के बोली, दे देखिए, बेबी ने दीदादी का मच्छरदानी चबाते हुए वीडियो भेजा है। हमने मोबाइल देख के कहा, अरे उल्लू तो बनाओ मत हमको, हट। कोई आदमी मच्छरदानी कैसे चबा सकता है? हाँ, ये टिकटॉक बना के डाला है। बस हमारा इतना कहना था कि वो आदमी स्कूटर पटक के हमारी तरफ बढ़ा। टिकटॉक लगता है तुमको? टिकटॉक का हम बायकॉट कर चुके हैं। ये वीडियो लाइव बनाया गया है। अरे यकीन नहीं हो रहा है? कांस्टेबल, जब इंसान का दिमाग घूम जाता है ना, तो वो कुछ भी खा सकता है। तकिया, रजाई, कंबल, सोफा, सब कुछ। हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे खाता है। ससुरे ने बढ़ के हमारी कैप छीन ली और चबाने लगा। वो तो भला हो उसकी औरत का कि उसने रोक लिया, टैप मत दबाइए, टैप मत दबाइए। और वो गुस्से से हमारे ऊपर थूक के सनसनाते हुए स्कूटर से चले गए। अरे हाथ मुंह ही नहीं, पूरी बॉडी पे सैनिटाइजर लगाना पड़ा। अबे तेरे, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे विनायक, उसको रोको, साइकिल वाले को चूतिया।
हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, चुतिया बीच में घुसाया, पकड़ के रखो उसको, हाँ रोको उसको। अरे खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, आप उधर उधर कहाँ देख रहे हैं? ये हाथ देख रहे हैं हमारा, ये हाथ देख रहे हैं अभी। आज सुबह सुबह एक लौंडे को पकड़े रहे हम। काहे बे, तुम लॉकडाउन में मजनू बने काहे घूम रहे हो बाहर? बीड़ी लेने निकले हैं साहब, पान ठेला तक जा रहे हैं। बकवास नहीं, कोई पान ठेला वेला नहीं खुला है। हमको पता चला है हुजूर, ठेला में ताला लगा है, मगर चौरसिया जी ठेला के अंदर घुसे हैं, एक छेदा कर लिए हैं, उसी में से पैसे लेके बीड़ी सिगरेट दे रहे हैं। उस चौरसिया को हम देख लेंगे, तुम घर जाओ, एक दिन बीड़ी नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। हम तो मर ही जाएंगे साहब, बस 2-4 बंडल बीड़ी के लेके फटाफट वापस आ जाएंगे। पेट फूल के फुग्गा हो गया है, 4 दिन से टट्टी नहीं निकली है। टट्टी तेरी हम निकालते हैं मादर जाए। हम 2 डंडा मारे साले को और पकड़ के ले जाने लगे तो साला हमारा हाथ काट के भाग निकला। देख रहे हैं आप, हाथ काट के भाग निकला हमारा। और ऊपर से वो हवलदार लखन सिंह, हमारी जान का दुश्मन, उसने इंस्पेक्टर साहब से कंप्लेन कर दी कि हम बिना चेकिंग के लोगों को धड़ाधड़ जाने दे रहे हैं, बिना चेकिंग के। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब आए, इसी समय वर्दी उतार के हवा हो जा हवलदार हवा सिंह। और इसीलिए खड़े हैं हम यहाँ पे नंगे पुंगे चड्डी बनियान में, इसीलिए खड़े हैं वर्दी उतार के। देख रहे हैं आप, सस्पेंड कर दिया हमको। हाँ तो भैया अब हमें मुंबई नगरी में 1 मिनट भी नहीं रुकना है, नहीं रुकना है हमको। हम श्रमिक स्पेशल से जा नहीं सकते, काहे से कि हम श्रमिक नहीं हैं, हम एक्स पुलिस हैं। तो भैया आप कृपा करके हमें हमारे गांव सुल्तानपुर पहुंचाने का इंतजाम करवा दो। हाँ हम ट्रक में चले जाएंगे, हम ऑटो से चले जाएंगे, हम साइकिल से चले जाएंगे, नहीं तो हम पैदल निकल जाएंगे बस। अरे ये भैया, ये इंटरव्यू टीवी पे कब आएगा? हाँ कब आएगा? नहीं हम गांव में बताएंगे ना फ़ोन करके कि हमारा भी इंटरव्यू टीवी पे आता है, तो गांव वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि हवलदार हवा सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है, उसका भी इंटरव्यू टीवी पे आता है, समझे? हाँ हाँ।